students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. Students, हमने चैप्टर 3 कीबोर्ड में थर्ड सेशन में स्पेस बार की के बारे में डिस्कस किया था और बाकी की जो कीज है, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट कीज देखी, न्यूमेरिक कीज देखी, मीन्स नंबर कीज देखी, फिर हमने एरो की के बारे में डिस्कस किया, एंटर की के बारे में डिस्कस किया, फंक्शंस की, स्पेस बार की, उसकी हमने प्रैक्टिकल्स भी देख ली और आई होप आप सभी को वो पसंद आई। ओके, नेक्स्ट की हम डिस्कस करते हैं कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की नो मीन्स कैप्स लॉक की શું છે? કેપ્સ લોક કીની તમને આઈ થિંક મેં પ્લેસ બી દેખાડેલી હતી કે કીબોર્ડમાં કેપ્સ લોક કી છે એ ટેબ કીની નીચે આવશે। કેપ્સ લોક કીનો યુઝ બી તમને આઈ થિંક ખબર હશે, ના ખબર હોય તો હું હમણાં તમને કહીશ અને આપણે એમનો પણ વિડીયો જોઈશું, પ્રેક્ટિકલ્સ કરીને જોઈશું કે એમાં આપણે કેવી રીતે એનો યુઝ કેવી રીતે થશે। ઓકે, સો कैप्स लॉक कीनो यूज आपणे कोईपण हेन्डराइटिंग कैपिटल लेटर में करवा छे। हवे तमने आइडिया हशे कैपिटल लेटर अने स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स कैपिटल लेटर एटले फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये है कैपिटल लेटर्स। और स्मॉल लेटर्स ए सी। ओके, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपको पता होगा, हमने जब प्रैक्टिकल्स किया था, प्रैक्टिकल्स मैंने आपको दिखाया था करके, तभी हमने ए बी सी कैपिटल लेटर्स में ही करे थे, स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं किया था हमने। ओके, और अगर कोई वर्ड लिखने में हमने कोई जगह पे आई होप किया होगा, पर मेरे ख्याल से हमने स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं किया, कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ किया। तो अगर हमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे? तो हम स्मॉल लेटर्स में सब कुछ लिख सकते हैं। अगर हमें स्मॉल लेटर्स में से कैपिटल लेटर्स में ट्रांसफ़र करना है तो हमें कैप्स लॉक की यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। ओके, सो ओके, कैप्स लॉक की का यूज क्या है? द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप, कैप्स लॉक की यूज्ड टू टाइप वर्ड और टेक्स्ट, वर्ड और टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। ओके, कैप्स लॉक की नो यूज શું થાશે, ક્યાં થાશે? कैप्स लॉक की यूज्ड टू टाइप वर्ड और टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। આપણે કોઈ વર્ડ લખવા છે, કોઈ પણ લેટર ટાઈપ કરવો છે, પેરેગ્રાફ ટાઈપ કરવો છે, એમાં તમારે કેપિટલ લેટર્સ લખવા છે તો તમે કઈ કીનો યુઝ કરશો? કેપ્સ લॉक કીનો યુઝ કરશો। આપણે એકવાર કેપ્સ લॉक की ઓપન મીન્સ પ્રેસ કરશું ત્યારે કેપિટલ લેટર્સ આપણને ચેન્જ થઈ જશે અને કેપિટલ લેટર્સ દેખાશે આપણે ટાઈપ કરશું ત્યારે। ફરીથી જ્યારે આપણે પાછા સ્મોલ લેટર્સ કરવા છે તો ત્યારે પાછી આપણે કેપ્સ લॉक की પ્રેસ કરશું, તો પછી જે આપણે પાછી કેપ્સ લॉक की પ્રેસ કરી ત્યારે આપણને શું દેખાશે? કેપિટલ લેટર્સમાંથી સ્મોલ લેટર્સ ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે। ઓકે, અને આ કેપ્સ લॉक કીને ટોગલ કી કહેવાશે। ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ टॉगल की, TOGGLEKEY। कैप्स लॉक की ने આપણે બીજા નામમાં ટોગલ કી તરીકે પણ ઓળખી શકીએ। હવે ટોગલ કી કેપ્સ લॉक કી ને શું કામ એને કહેવાય ને એ આપણે
શિફ્ટ કીમાં જોઈશું, કારણ કે આપણે ક્યારેક કેપ્સલોક કી ના ચાલતી હોય તો શિફ્ટ કી પ્રેસ કરીને પણ આપણે કેપિટલ લેટર્સ ટાઈપ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે એમને ટોગલ કી કહેવાશે, કારણ કે કેપ્સલોક કી અને શિફ્ટ કી બે કીથી આપણે શું કરી શકીએ, કેપિટલ લેટર ટાઈપ કરી શકીએ. પણ ક્યારે, જ્યારે કેપ્સલોક કી ના ચાલતી હોય અથવા તો આપણે વારે કેપ્સલોક કી પ્રેસ કરવી ના પડે, એટલા માટે આપણે શિફ્ટ કીની સાથે પ્રેસ કરીને આપણે કોઈ પણ ટાઈપ કરી શકીએ. ओके, तो ये हो गई हमारी कैप्सलॉक की. और एक बात, कैप्सलॉक की में अमुक जे कीबोर्ड हशे एमां तमे कैप्सलॉक की एक बार प्रेस करशो ने એટલે કીબોર્ડમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ગ્રીન લાઇટથી ઇન્ડિકેટ કરશે. માનો કે આપણે એકવાર કેપ્સલોક કી પ્રેસ કરી, આપણે કેપિટલ લેટર્સ લખવા છે એટલા માટે. હવે એકવાર આપણે કેપિટલ લેટર્સ લખ્યા છે, હવે આપણે પાછી કેપ્સલોક કી પ્રેસ કરશું ત્યારે ગ્રીન લાઇટ ઓફ થઈ જશે. આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ કેપિટલ્સ લેટર લખવા છે, આપણે કેપ્સલોક કી પ્રેસ કરી છીએ તો ગ્રીન લાઇટ ચાલુ થશે. હવે આપણે કેપિટલ્સ લેટર નથી લખવા, પાછા નોર્મલ આપણે કયા લેટર્સ લખવા છે, સ્મોલ લેટર્સ, તો આપણે ફરીથી પાછી કેપ્સલોક કી પ્રેસ કરશું. કેપ્સલોક કી પ્રેસ કરશું એટલે ગ્રીન લાઇટ ઓફ થઈ જશે. તો તમને આઈડિયા આવશે કીબોર્ડમાં કે કેપ્સલોક કી ઓન છે કે કેપ્સલોક કી ઓફ છે. અગર ગ્રીન લાઇટ ઓન હશે તો કેપ્સલોક की ऑन हसे અને ग्रीन लाइट ऑफ हसे तो कैप्सलॉक की ऑफ हसे. तो आ शू થઈ ગયું, कैप्सलॉक की. आई होप आप सभी को याद होगा. फर्स्ट एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ. कैप्सलॉक की का यूज़ हम कोई लेटर में, कोई टेक्स्ट में, कोई पैराग्राफ पे हमें अगर कोई कैपिटल लेटर्स करना है तो हम कैप्सलॉक की का यूज़ करेंगे. कैप्सलॉक की used to type word or text in a capital letters. कैप्सलॉक की नो यूज़ क्या थશે, कैप्सलॉक की नो यूज़ क्या थશે, कैपिटल लेटर टाइप करवा माटे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टॉगल की. तो તમે એમને ટોગલ કી તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. અને એક વાત મેં તમને એ કીધી, ગ્રીન લાઇટ ઓન અને ઓફ થવાની. અગર તમારી કેપ્સલॉक की ઓન હશે तो कीबोर्डમાં राइट हेन्ड साइड ઉપર પણ શું હશે, कैप्सलॉक की ऑन हसे. अगर तमारू कैप्सलॉक की ऑफ हसे तो तमने ग्रीन लाइट थी इंडिकेट करशे नहीं. तो तमे त्याथी जोई शको कि कैप्सलॉक की ऑन छे के ऑफ छे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी कैप्सलॉक की. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट की लास्ट सेशन में उसका प्रैक्टिकल देखा, नंबर की का प्रैक्टिकल देखा, एरो की, एंटर की का प्रैक्टिकल देखा, और आज हम कैप्सलॉक की का प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैप्सलॉक की कैसे यूज़ होती है. ओके, तो ये है हमारा नोटपैड प्रोग्राम जो कि हमने लास्ट टाइम पे भी ऑन किया था और उसमें भी वर्क किया था. आपको इस बार यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो सभी. यस, यहाँ पे ये जो लाइन है वो कर्सर है, जो उस वीडियो में जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कर्सर की आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही थी, पर इस वीडियो में यहाँ पे लैपटॉप में कर्सर की प्रॉपर दिखाई दे रही है. ओके, सो कैप्सलॉक की में मैंने आपको बताया था कि हम कोई टेक्स्ट, लेटर या फिर कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसमें हमें कोई जगह कैपिटल लेटर्स टाइप करने हो तो हम कैप्सलॉक की का यूज़ करेंगे. तो आपको पता होगा कि हम कैप्सलॉक की यहाँ पे है, यस, ये वाली है जो है कैप्सलॉक की. तो हम एक सेंटेंस पहले टाइप करते हैं. ओके, हम एक सेंटेंस लेते हैं. स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. तो हम पहले स्मॉल लेटर, जो हमने कैप्सलॉक की स्टार्ट नहीं की है, कैप्सलॉक की हमने टच नहीं की है, प्रेस नहीं की है, तो सभी लेटर्स किस में आएंगे, स्मॉल लेटर्स में. ओके, तो मैं टाइप करती हूँ, आप देखोगे. स्पेस बार, SPACE, स्पेस बार, BAR, स्पेस बार, स्पेस,
जो देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रही है। ओके, एक बार कर्सर ब्लिंक होके रुक गई है। स्पेस बार इज द IS। देखो फिर से कर्सर ब्लिंक हो रही है। स्पेस हमें चाहिए तो हम स्पेस बार की प्रेस करते हैं। ये देखो, ये हमने स्पेस बार की प्रेस की तो यहाँ पे कर्सर स्पेस होके चली गई। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट, द THE। फिर स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट LONGE, longest ST, longest space key on the keyboard KEY, key space ON space THE on the keyboard KEYBOARD, फुल स्टॉप। ओके, आपने देखा होगा कीबोर्ड है वो स्क्रीन में नहीं समाતું નહોતું तो શું થઈ ગયું, આખી સ્ક્રીન છે મૂવ થઈ ગઈ। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस बार SPA कट हो गया क्योंकि कीबोर्ड मैंने लिखना था तो ये स्क्रीन ऐसे मूव हो गई। ओके, तो आप देख सकते हो यस, स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये सेंटेंस हमने फुल स्मॉल लेटर में ही टाइप किया। अगर यही सेंटेंस मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगी? ओके, पहले मैं थोड़ा सा उसे हैंड राइटिंग को स्मॉल कर देती हूँ ताकि एक मिनट। हैंड राइटिंग आपके जो फ़ॉन्ट है मैं थोड़े से यस, अभी आपको एक सेंटेंस एक स्क्रीन में दिखाई देगा, राइट। अभी मुझे नेक्स्ट लाइन में यही सेंटेंस कैप्स लॉक में चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव करने के लिए किस वाली की प्रेस करूँगी? एंटर की। आपको पता होना चाहिए कि एंटर की का यूज़ कोई भी सेंटेंस हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो वो यूज़ होती है। यहाँ पे देखो एंटर की है, मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। प्रेस आ गई कर्सर नेक्स्ट लाइन में, तो एंटर की का यूज़ हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, स्क्रीन कंप्लीट हो जाती है हमारी, हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए कोई सेंटेंस तो हम एंटर की का यूज़ करके कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जा सकते हैं। और फिर हमें चाहिए कैप्स लॉक, मीन्स कैपिटल लेटर्स करने हैं तो हमें कैप्स लॉक की ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक की प्रेस की है। ओके, अभी मैंने आपको कैप्स लॉक की में बताया था कि अगर कैप्स लॉक की ऑन हुई तो हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट नज़र आएगी, पर ये लैपटॉप है, लैपटॉप में थोड़ा सा डिफरेंट है। लैपटॉप में क्या होगा, कैप्स लॉक की ऑन होने पर यहाँ पे ही वाइट लाइट से इंडिकेट हुआ है। कीबोर्ड में क्या होगा, जो पीसी कीबोर्ड है उसमें कैप्स लॉक की ऑन होने पर यहाँ पे ग्रीन लाइट होगी, पर लैपटॉप में क्या होगा, लैपटॉप में कैप्स लॉक की ऑन होने पर ये लाइट यहाँ पे ऑन होगी। कैप्स लॉक की अगर मुझे फिर से बंद करनी है तो मैं एक बार वही कैप्स लॉक की प्रेस करूँगी तो वो लाइट चली जाएगी। ओके, तो आपको पता चलेगा कि अगर लाइट यहाँ पे ऑफ है तो कैप्स लॉक की ऑफ है, अगर यहाँ पे लाइट ऑन है तो कैप्स लॉक की ऑन है। ओके, हवे कैप्स लॉक की ऑन है। આપણે આ જ સેન્ટેન્સ છે એ ફરી પાછું લખીએ।
स्पेस बार। अभी आप देखिएगा सभी लेटर्स कैप्स लॉक में आएंगे, कैपिटल लेटर्स में आएंगे। स्पेस बार, स्पेस इज स्पेस द लॉन्गेस्ट की। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की। हम यहीं तक का सेंटेंस लिखते हैं। तो अभी आप दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख सकते हो। फर्स्ट वाला जो है वो स्मॉल लेटर्स में है और सेकंड वाला जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, आप देख सकते हो। ओके, अभी मुझे फिर से एक सेंटेंस मुझे ऐसा चाहिए कि मैं इस सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करूँगी और स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करूँगी। ओके, तो फिर से नेक्स्ट लाइन पे के कर्सर में लेके जाती हूँ, एंटर की प्रेस करके। यस, यहाँ पे एक मिनट। ओके, अभी मैं एक सेंटेंस ऐसा टाइप करूँगी जिसमें कैपिटल लेटर्स भी मुझे चाहिए और स्मॉल लेटर्स भी चाहिए। ओके, तो मैं एक सेंटेंस टाइप करती हूँ। कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की। तो कैप्स लॉक लिखने के लिए सी मुझे कैपिटल चाहिए, बाकी सब कुछ स्मॉल चाहिए। तो कैप्स लॉक की यहाँ पे ऑन ही है, तो सी मैं टाइप करूँगी तो वो कैपिटल आ जाएगा। फिर मुझे चाहिए स्मॉल, तो यहाँ पे मैं कैप्स लॉक की प्रेस करके कैप्स लॉक की को ऑफ करूँगी। अभी मुझे जो कुछ भी लिखना है वो स्मॉल लेटर में आएगा। कैप्स लॉक CAPS, कैप्स LOCK। ओके, कैप्स लॉक। फिर मुझे स्पेस देनी है, फिर मुझे की लिखना है। तो की में के છે કેપિટલ લેટર છે, એ પાછો મારે કેપ્સ લોકમાં જોઈએ છે, કેપિટલ લેટરમાં જોઈએ છે। તો હું ફરી પાછું શું કરીશ, તો કે અહીંયા તો આપણે જોઈ શકો છો કેપ્સ લોક કી છે એ બંધ છે। તો હવે પાછું મારે કેપિટલ લેટર્સ કરવું હોય તો હું કેપ્સ લોક કી પાછી ઓન કરીશ અને હું કે લખીશ। તો કે શેમાં આવ્યો? કેપિટલમાં। હવે પાછી ઈ અને વાય છે એ મારે સ્મોલ લેટર્સમાં જોઈએ છે, તો હું ફરી પાછી કેપ્સ લોક કી બંધ કરી દઈશ, એટલે હવે પાછું જે હું લખીશ એ સ્મોલ લેટરમાં લખાશે। કેપ્સ લોક की, KEY, कैप्स लॉक की स्पेस इज अ, ये तो मुझे स्मॉल में ही चाहिए। अब मुझे लिखना है टॉगल, तो मैं टॉगल कैसे लिखती हूँ? मुझे टी कैप्स लॉक में चाहिए, बाकी सब कुछ स्मॉल में चाहिए। तो कैपिटल टी लिखने के लिए मैं यहाँ पे देखूँगी कैप्स लॉक की ऑन है या फिर ऑफ है। तो ऑफ है तो मैं पहले कैप्स लॉक की ऑन करूँगी, फिर मैं लिखूँगी टी, तो वो कैप्स लॉक में आएगा। फिर मुझे खाली टी ही कैपिटल चाहिए, बाकी का सब कुछ मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पे कैप्स लॉक की बंद कर दूँगी और लिखूँगी टॉगल, TOGGLE स्पेस की, फुल स्टॉप। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में सभी लेटर्स स्मॉल है, सेकेंड सेंटेंस में सभी लेटर्स कैपिटल है, और थर्ड लाइन में आप देख सकते हो कि सी, के और टी ये कैपिटल है, बाकी के सभी लेटर्स स्मॉल है। तो आप इस तरह से कैप्स लॉक की का यूज़ कर सकते हो। ओके बेटा, ओके। अब हम आपकी वर्कशीट्स की बात कर लेते हैं। हमारी स्किल शीट बुक में 1 मिनट, यस, हमारी स्किल शीट बुक में एसेस पेज नंबर 19, स्किल शीट पेज नंबर 19 पे एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। वन साइड आपको कीज़ की ड्राइंग दिखी हुई है,
और वन साइड दूसरी साइड आपको इसका नेम लिखा हुआ मिलेगा। वन साइड कीज ड्रॉ की हुई है और वन साइड नेम लिखा हुआ है। आपको राइट की के राइट नेम को ज्वाइन करना है, मीन्स मैच करना है और वच्चे जो तमने बॉक्स आप्या छे एमां लखवाना छे। एक तमने करी दीधुं छे ए मीन्स एंटर की ए एंड बाजुनी जे रो छे तमारी एमां एंटर की क्या लखेलुं छे तो के फोर्थ क्वेश्चन में तो A4। एवी रीते शिफ्ट छे, शिफ्ट की छे तो शिफ्ट की बाजुनी रो में क्या लखेलुं छे तो के 8 में तो तमे शुं लखशो B8। एवी रीते आ आखुं जे मैच द फॉलोइंग छे तमारे कम्प्लीट करवानुं छे SS पेज नंबर 19 पर। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा कैप्स लॉक की के यूज़ और कैप्स लॉक की कैसे यूज़ होती है। कैप्स लॉक की से कैसे हम स्मॉल लेटर्स से कैपिटल लेटर्स है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, बाकी का सब कुछ, बाकी की जो कीज़ बची हुई है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट, सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।